So again, I'll talk about it. Let's say your data is in a different manner. मैं ऐसा करता हूँ. If we have discussed transpose or not, आपको याद आ जाएगा प्रॉब्लम डिस्कस किया होगा क्लास में. Transpose. If I come here, there's this option over here that says transpose. Okay. जी. So do you think so? If let's say my data was given this way, what would I have said? No, I can't import this. अगर मैं इसको देखूंगा अच्छी तरह तो मुझे ज़हन में आएगा मैं इसको इंपोर्ट नहीं कर सकता. उनकी डेटा फुल स्टॉक में है ऑलरेडी. अब देखो, this could be a case where the examiner will try to confuse you. बड़ा tough step हो जाएगा if the students are not aware of transposing in your syllabus. तो this is what you have to do. Secondly, अगर आपके पास डेटा है and in your data let's say somewhere, तो सर हम उसको horizontal को ट्रांसपोज करके वर्टिकल में करें. yeah, you just have to make sure कि your first row contains the field names. अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक पेपर में आया भी हुआ है कि फर्स्ट रो जो है ना इसमें फील्ड नेम्स लिखे ना हो और आपको पेपर में कहो कि दीज आर द फील्ड नेम्स फॉर योर डेटा. दो तरीके हैं. बेहतर तरीका ये है कि ओपन अप द CSV फाइल एंड टाइप द फील्ड नेम्स. फॉर एग्जांपल इफ दिस वाज नॉट हियर, मैं इसको डिलीट कर देता हूं. दिस इज द डेटा. पेपर में एग्जामिनर का है कि the following table should have these three field names. What you will do is right click and you will say insert and then you will type these here, you will save it and then you will import it. ठीक है ना. मैं ICT में you have to come up with the most appropriate solution. देखो, if you look at the past papers, 70 to 80% of things are repeating, 20% to 25% things are new, and out of these 25 you will see 15% points at times are critical and complicated. जी, जो कई दफा इंक्रीज भी हो जाता है. दिस इज वेयर स्टूडेंट्स गेट स्टक और उनका A स्टार से A आता है, उनका जिनका A आ रहा होता है उनका B आ जाता है. तो उन पॉइंट्स को मैं आपसे ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ. ठीक है, डेटा आपका इंपोर्ट हो गया. मैं अब एक्सेस ओपन कर रहा हूँ. वंस यू प्रिपेयर ना, आई विल गिव यू माय एडवांस एक्टिविटीज वेरी सून. हर मॉड्यूल की वो आपने साथ साथ करनी है व्हेन एवर यू हैव फ्री टाइम. ओके. अच्छा, ये हमने डेटा इंपोर्ट कर लिया. ठीक है. नाउ लेट्स से यू हैव टू वैलिडेट इट. वेल, वैलिडेशन से पहले मैं एक काम करूंगा. लेट मी जस्ट रिमूव द रिलेशनशिप्स. तो वैलिडेशन का मतलब कि सिंपल होता है चेक करना कि डाटा. जी, वैलिडेशन का मतलब यही होता है टू अवॉइड एरर्स एंड टू मेंटेन डेटा इंटेग्रिटी. व्हाट इज मेंट बाय डेटा इंटेग्रिटी? इज डेटा इन द फॉर्म the way it is. If I'm supposed to enter SAM, तो मैं SAM ही लिख रहा हूँ या 5 AM तो नहीं लिख रहा. Okay, and there are two ways we can maintain data integrity. One is verification and one is validation. You know that. Verification is Something done by humans, double entry system and all that. अच्छा, मैं इधर आता हूँ. इधर क्या लिखा हुआ है? IDM. Now the question says that make sure that only the qualification IDM can be entered. ठीक है. आपने डिजाइन व्यू में आना है, आपने क्वालिफिकेशन में आना है, एंड यू विल राइट ओवर हियर इज I or D or M, and in the rule I will say is please enter I or D or M. So if I actually Sir, please enter लिखना चाहिए. sorry, Please enter लिखना चाहिए. Request. courtesy. Computer request. Depends on how courtesy you are showing. Okay, if I enter over here is you, for example, it says no. Obviously, it will not work. If you enter M, it will work. अच्छा, question is, अब इसमें कितने होंगे? Obviously, you will have over here is range check. अगर कोई number है, you will write between 10 and 20. If you're comparing date, you will write between first 01/01/1992 and 01/01/1995. You can have greater than, you can have less than, और ये भी हो सकता है कि you can even use wildcards. Remember what are wildcards?
Very good. So if I want to restrict the what do you say जो हमारे पास है डेटा फॉर एग्जांपल द फोर नेम या द पेरोल नंबर है कुछ भी कह लो द फर्स्ट character should be J, you write J star. And if the last one has to be E, what do I type? Static E. If I want the second character to be E, Static E, sorry. no. The second I want is, let's say, okay, I'll say O. I want the second character to be O. I will write is question mark O star. Because question mark, one character. Question mark मतलब कोई भी एक character, but the second character should be O, तो मैंने वो लिखा. And star means after that I can have as many characters, not my concern. You get the point? Okay? Right. ठीक है. मगर इसके साथ साथ there is another thing जो मैं advancement आपको कराने लगा हूँ, वो है input mask. Okay? Have we discussed in the class? Input mask क्या होता है? Input mask is a format check. मैं लिखता हूँ vehicle identification number. I just made a new field to explain you. I come here और मैं यहाँ क्या करता हूँ? यहाँ मैं लिखता हूँ let me just edit this और मैं यहाँ कहता हूँ vehicle number है ना, it should be 000 and space 040. ये हुआ ना? Exactly. ये आपका है input mask. इसमें font में मिलेगा 000. जी बिल्कुल, and you can type it in. And if I want the first to be letters, capital L. Capital L. ठीक हो गया. Very good. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा ये सारा तो हो गया. Validation is clear. Okay. एक वैलिडेशन की PDF फाइल है, वो मैं आपको सेंड करूंगा. आपने उससे प्रैक्टिस करना है. ओके. मैं डायरेक्टली क्यूरीज पे आता हूँ. अच्छा क्यूरीज पर रिलेशनशिप. What is the thing that you look at to make a relationship? If I open up all these, आपने मुझे मेरे साथ बताना है कि इसमें प्राइमरी की. वेरी गुड. पेरोल नंबर इसमें है, नथिंग एल्स. और उनका डिजाइन व्यू में टेक्स्ट भी सेम होना चाहिए. एग्जैक्टली. वेरी गुड. और क्या इधर? साइट नंबर. ठीक है. और इधर क्या है? राइट. So I can see over here is site ID सेम. Site ID और site ID same है. Or what about this one? You have the code and you have over here. Is this not qualifications? Exactly. This is many and this is one. So this will be one to many. ठीक है? So obviously the relationship that we will create will be क्या होगा हमारा? Site ID to site ID. जी ये तो हो गया. Site ID to site ID which will be one to many. You will take a screenshot of this and you'll give it to the examiner. एक ये हो गया. And then Q code and qualification. नहीं Q code क्या था? Qualification नहीं तो ये तो होगा ना, many to many हो जाएगा ना. You cannot make many to many. I think so it was Q code and qualification. M17 देख लेते हैं. What was qualification? Yes, qualification. And मैं क्या कह रहा हूँ? Q code. Q code कह रहा हूँ, उसको भी देख लेते हैं. जी. Always be sure what you're doing. Okay. So one to many. You'll take a screenshot. So one screenshot of that, one to many, one screenshot of this. अब कौन सा रह गया? We need another one. जी. अब किसका रिलेशनशिप बनेगा? Because if you let's say get 4 tables, 3 tables, they have to be interlinked. अब ये लिंक सारे नहीं हुए. We still have one. Q code to site name. No, site name was different. Q code and I have to check. Site name was no. हाँ? Name नहीं होगा. Depth. What is that? Depth देख लेते हैं. Site ID का बन गया. Dive number. Dive number was what? Dive number किसी का नहीं बन रहा. What was dive number? Dive number. Dive number should be somewhere else because it's used as primary key. So do we have dive number over here? Let's check.
पेरोल नंबर भी दिखाना चाहिए। पे रेट के साथ। What is this? Lead. Driver. What is this? This is Driver number. 7001 TD. That's one. And TD. साइट आईडी का होना चाहिए। साइट आईडी एंड साइट आईडी। साइट आईडी है ना, वो तो बना हुआ है। सर पेरोल नंबर का पे रेट। पे रेट क्या था, पेरोल नंबर क्या था? पेरोल नंबर ये था एंड पे रेट वाज इट इज नो दैट्स no, इसका नहीं बन सकता ना, इट्स अ नंबर। चल इसका क्वेरी बन रहा, इधर देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन का बन चुका है, पेरोल नंबर का बनना चाहिए किसी के साथ। हाँ तो पेरोल नंबर एंड बन तो रहा है। डाइवर में सर बन रहा है ना, डाइव नंबर, पेरोल नंबर एंड डाइव नंबर का बन रहा है। सो हियर यू गो, पेरोल नंबर एंड सर तो 1-to-1 में नहीं 1-1-2-1 लीड डाइवर TDS लीड डाइवर TDS। हाँ अभी बात चल रहे करें लीड डाइवर। सर लास्ट टेबल साइज 1-to-1 बन रहे, 1-to-many। अगर अच्छा अगर ये नहीं बनेगा ना, इट विल गिव यू इनडिटर्मिनेट। हैव यू सीन इट एवर? मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आई विल मेक विगल्स बना के दिखाता हूँ आपको। कोई सही बना, सो लेट मी टेक इट विद डेट, should give me, let's say qualification। ये तो बनेगा ही, I want to show you, ये नहीं बनेगा। इसके साथ खैर एनीवे, लीड ड्राइवर था ना, क्रिएट, अब हमारा बन गया। बट आई विल टेल यू हाउ टू चेक आपका रिलेशनशिप सही है कि गलत है। रिमेंबर दैट आई टोल्ड यू रूल टू चेक योर रिलेशनशिप इज राइट और रॉन्ग। ओके आई शो यू। कम टू क्रिएट, इनको ऐड करो, इसमें से फील्ड डालो, इसमें से 2 फील्ड डालो, इसमें से पुट 3 फील्ड, इसमें से पुट 2 फील्ड। perfectly fine relationship, right? How can I tell? सर उसके टेबल पे नहीं आ रहे। पहली बात है कि देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ डेटा, ये कोई रेपिटेशन नहीं है। मतलब ये मत समझो कि ये अगर रिपीट, रेपिटेशन मींस दिस फुल रिकॉर्ड इज बीइंग रिपीटेड अगेन। ये पूरा रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है कहीं नहीं, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ऑल रिकॉर्ड्स, इफ योर रिलेशनशिप इज रॉन्ग, पहली बात है कि यही रिकॉर्ड बार बार रिपीट होगा, पहली रीजन। दूसरा रीजन क्या होगा, इफ योर रिलेशनशिप इज रॉन्ग, ये पूरा आउटपुट एम्प्टी आएगी। अगर रन करते हो एम्प्टी आता है तब भी रिलेशनशिप होता है। थर्ड क्या होता है, मिसमैच, टाइप मिसमैच एरर। कभी देखा होगा आपने टाइप मिसमैच, यू जस्ट टोल्ड मी, आपने बताया टाइप मिसमैच कब आता है, व्हेन द डेटा टाइप बिटवीन द फील्ड्स दैट यू क्रिएटेड रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप गलत है, एक नंबर है एक टेक्स्ट है। सो आउटपुट सही आ रही है हमारी, तो आवर रिलेशनशिप इज राइट। आई एडेड फील्ड्स फ्रॉम एवरी टेबल और मैंने चेक किया, सो वी आर श्योर इट्स राइट। आप काम कंटिन्यू कर सकते हो। अगर इन तीनों में से कोई एक भी इशू आता है, ऑब्वियसली यू कांट कंटिन्यू। ठीक है, अच्छा लेट्स डिस्कस नाउ। वेल वाइल्ड कार्ड्स का आपको पता है,
You know what this or is. For example, if I talk about uh, you know what this or, SQL view क्या होता है? मैं बताता हूँ आपको. For example, if I want to find out all those qualification is instructor, okay, see, and I'll say site name P star. Just और pin means this. क्या तो ये हो. जी, और याद है आपको, you know this or and you know the other or. Criteria और जी, one or between the fields and the other or inside the field. पता है ना आपको. मैं आपको SQL का बताता हूँ पहले. SQL का फायदा सिर्फ ये है कि you will know. For example, I'll type this P star. So if I run this, what am I writing? I'm getting the qualification which starts with I, or it's P. Where it's not starting with I, it's P, and where it's starting with I, it's not P. और लगाया ना, ये field हो या ये field हो, right? Now you do this, but you're not. Database के लिए वो कौन सा वाला ज़्यादा रेट उसको करेगा? Priority? Priority नहीं, response करेगा. priority. Qualification This ज़्यादा. means देखो, either this or this. If instructor is starting with I or with P. अब देखो कहीं कहीं जगह and भी आ रहा है. Do you see this? I and P. So fine. We never said that you will not display those which are and. जैसे वायर रिकॉर्ड्स तकरीबन उतने ही आएंगे, करीब करीब नंबर आएगा. हाँ, मगर कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं आएगा कि जिसमें इंस्ट्रक्टर भी ना हो और P स्टार भी ना हो. वो तो एलिमिनेट हो गए ना. Get the point? Yeah. The point is you know how to do it, but you want to be sure. So उसके लिए you come to the SQL view. और इधर आके अगर आप आखिरी लाइन देखोगे कि where qualification is instructor or the site name is P star. And probably ये भी हमने डिस्कस किया होगा. If I put them in one line क्या होता है? If I put them in one line, तो ये and हो रहा है और SQL view मुझे बता रहा है कि and आ रहा है. सही है, तो फिर आसान हो गया. आप कोई भी फॉर्मूला डालो एक्सेस जी, में फॉर एन एसक्यूएल. you can confirm. अब अगर लेट्स से इस पेपर में इस दफा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है where the examiner कंफ्यूज करता है, कहता है the qualification is instructor or the site name is this and the depth is this. So what we'll do is इधर ये लिखेंगे and the लिखेंगे और फिर वो कहता है और इधर फिर ये लिखेंगे. Now but you might be confused. आप SQL में जाके देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. अगर मैं इसका रन करता हूँ and depth को मैं कह देता हूँ S. Let's do it as and. Let's do it as. Let's see the output. Right? I'm not sure am I doing it right or not. But if I come to my SQL view, you can see what's happening. It says where this or this and this. These two are being compared through an and. So I'm confident that मेरा output obviously सही है. So it's one way to determine you're doing right or wrong. क्योंकि confusion आपकी मुझे लगता है अगर क्यूरी में मार्क्स कटे हैं तो यही होगी because you don't know, you didn't check कि मेरी आउटपुट सही है गलत है. But verification is important. थोड़ा verify भी करो ना, आइडिया हो जाता है. प्रिंट आउट से वेरीफाई कर लिया कि दिस इज द क्वेश्चन, ये रिजल्ट मेरा आ रहा है, इज इट राइट और रॉन्ग. अगर थोड़ा सा डाउट आपको है तो ऑब्वियसली या आई नो टाइम कम होता है P2 में, बट दिस इज व्हाट प्रैक्टिस है. आपने अपनी प्रैक्टिस लानी है कि आपका पेपर आराम से 2 घंटे में हो जाए और इंशाल्लाह से पहले हो जाएगा. कोई भी प्रैक्टिस एंड जो आपके पास 20-25 मिनट्स बचे हुए हैं उसमें यू कैन रीचेक अगेन. डोंट पैनिक. इफ समथिंग गोज रॉन्ग आपके पास पुरानी फाइल, पुराना प्रिंट आउट होना चाहिए. यू विल कीप इट, आप उसको डिस्कार्ड नहीं करोगे. ठीक है, क्योंकि अलग से टाइम खत्म हो जाता है और आपने करेक्टेड प्रिंट आउट नहीं निकाला तो अगर आपने वो ही फाड़ दिए, वो भी डिस्कार्ड कर दिए, व्हाट विल यू डू? एटलीस्ट उसके आपको 80% मार्क्स तो मिल रहे हैं ना उस प्रिंट आउट के. तो बिकॉज दिस हैज हैपेंड विद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एवरी सेशन. मैंने तो डिस्कार्ड कर दिया था, मैं निकाल भी नहीं सकूंगा. सॉरी, यू हैव टू मैनेज. स्कैन्स में तो लोग आपको इस फैसिलिटेट नहीं करेंगे. मैनी स्टूडेंट्स डू इट, गलत करते हैं. वो साथ साथ न्यूज़ देते रहते हैं कि डिस्कार्ड कर दें और फिर जब टाइम खत्म होता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट में यू डोंट नो, टाइम ज़्यादा लग सकता है.
तो जब टाइम खत्म होगा तो उन्होंने तो प्रिंटर बंद कर देना ना, तो आपका प्रिंट आउट फिर नहीं आएगा. तो मीन्स अगर किसी का प्रिंट आउट निकल जाओ तो फिर भी फंस They will just ask you to stop working. और जितना You will stop working. आप वेट करोगे, जिनके प्रिंटर्स आ गए हैं वो आपको दे देंगे. मगर 2:30 जब टाइम खत्म होगा, you stop working. If you don't stop और आप काम करते रहते हो तो अगर एक बार आपको वार्न करेंगे, दूसरी बार आपको वार्न करेंगे, फिर थर्ड टाइम आपको कहेंगे कि you have to write a report. कि we gave you 2 warnings and third time why didn't you stop? Write a report and explain us. That report will be attached to the printouts. फिर हो जाएगी. जी. मगर मैं उधर हूँगा. इंशाल्लाह ऐसा नहीं अगर होगा भी तो मैं आई टेक केयर ऑफ इट. मगर आई डोंट वांट क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स इतने चौड़े हैं कि साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो इनको अनफेयर क्यों किया जा रहा है उनके साथ. ऐसा नहीं सर है. बाय द वे मैंने एक्स्ट्रा टाइम की दी है. रियली जी. वेरी गुड. क्योंकि क्या मैंने रीजन निकाला? मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था. अच्छा. क्या क्या रीजन था? रीजन ये है मुझे जुवेनाइल मोर क्रॉनिक एपिलेप्सी तो इसलिए वो फिर मैंने उसका दिया था मेडिकल सर्टिफिकेट. ओके. माय वाइफ आल्सो हैव इट. अच्छा. शुरू से है? नहीं. फिर मेरे क्यों हुआ? फादर की सेकंड मैरिज उन्होंने की थी. अच्छा. तो उसके बाद उन्होंने क्या है तो और एक सीक्रेट से उन्होंने सेकंड मैरिज की थी उसके बाद उन्होंने अच्छा. ओपन अप किया. अच्छा. या हम लोग भी नाना मुझे थे. अच्छा. मैं रातों में जागती रहती थी और स्ट्रेस की वजह से. स्ट्रेस कैसे होता है? मेरी वाइफ को प्रॉब्लम फादर पास में जाती है उसके बाद it was quite young. So stress लिए होता. I'm written how to drive as well. अच्छा गुड. आपको अच्छा हुआ आपने दे दिया. तो वैसे आपको किसने आइडिया दिया कि एप्लीकेशन देनी है? मिस फरा ने पिछले साल कहा था कि दे दो. और फिर दिया था और तकरीबन 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिले थे दोनों पर्पज में. आपको प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह 45 मिनट्स दूंगा. मे बी 1 आवर. 1 आवर. ग्रेट. डोंट मेंशन एनी स्टूडेंट प्लीज. किसी डिस्कस तो नहीं किया? नहीं. डोंट. किसी ने कोई भी पूछता है मैं कहती हूँ वो बस पेपर हो रहा था इसलिए. बस ठीक है. ठीक है. फिर आपको जब हॉल में एंटर होगी ना दे विल राइट इन फ्रंट ऑफ यू कि यू बीन गिवन दिस मच टाइम. आपने कोई ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत नहीं है. नहीं मैं सर में कर लूँगी 2 घंटे. आप आराम से करना. वांट टू बी परफेक्ट. मैं उधर ही हूँगा. मैं अगर 2.5 घंटे पेपर खत्म होता है मैं 5 बजे तक उधर ही होता हूँ. एग्जामिनर होते तो सारे पेपर कंपाइल करके ही मैं निकलता हूँ. मेरी ड्यूटी ज़्यादातर 2 सेंटर्स में लगती है. मगर जिस दिन मेरे स्टूडेंट्स होते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि आई डोंट गो टू द सेंटर. मैं अपने स्टूडेंट्स के पास मैं उधर ही होता हूँ. डोंट वरी. ओके ग्रेट. चलो अच्छा आपने मुझे बता दिया. मगर सेइंग दैट प्रैक्टिस हमने अपनी ऐसी रखनी है कि हमारे 2 घंटे में हो. कीप इन माइंड because I want let's say you have like 7% mistakes. तो उसको हम इतना रेक्टिफाई कर दें कि आपके मार्क्स कटे ना. I want to create for distinction. Get the point. ठीक है. और थ्योरी में लेट्स से आपने नहीं प्रिपेयर किया और आपके फिर भी 91% आ गए तो हो सकता है लकीली आपको एक ऐसा पेपर मिल गया जिसमें आपके आ गए हैं. It doesn't mean you're totally ready for it. You get the point ना. हाँ you get the point ना. तो जो हमारे 9% मार्क्स कटे हैं ना 9 मार्क्स इन थ्योरी नहीं करने चाहिए. थ्योरी में यू शुड गेट फुल. पूरे आपके आने चाहिए. तो मैं आपको प्रिंट आउट दे दिया करूँगा. मैं आपको कल ही स्कूल में जब कराओगे ना आई विल गिव यू प्रिंट आउट. लैब में जाने से पहले ना मुझसे पेपर ले लेना. आई विल गिव इट टू यू. डोंट मेंशन एनीथिंग. ऑब्वियसली आई कांट गिव इट टू एवरीवन. आई कांट. उनकी तैयारी हो रही है उस तरह. तो आप मुझसे ले लेना और मुझे वो 1 वीक बाद सॉल्व करके दे देना सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट. ठीक है. अच्छा ये हो गया. So you know or you know star you know question mark and you do know let's say for example हमने ये भी प्रॉब्लम पहले डिस्कस किया होगा कि if I delete this and if I delete this, if I want to show all the records that have no entry, what do I do? Will that work? Seriously, I never tried it. Okay, the site name था ना. So what I'm saying is space. No, sorry, you're not lucky. Didn't work. उसके लिए हम कहते हैं is null. A blank, very good. Blank भी कर सकते हो आप. Well done. Is blank.
तो जो जो एम्प्टी होंगे ना साइड वो पहले भी और होंगे तो उसे शो करा देंगे. And if I don't want the blank, I write is not null. Yeah, is not blank. Null looks more professional than saying is blank. Frankly speaking. तो ये भी क्लियर हो गया आपका. अच्छा, क्वेश्चन एग्जामिनर का समझना. एग्जामिनर इस तरह लिखता है कि हमें समझ नहीं आती. वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. उसके लिए आई विल गिव यू माय एडवांस एक्टिविटीज, नॉट द पास्ट पेपर. एडवांस एक्टिविटीज में आपको ना, क्योंकि एसक्यूएल को अप्लाई करने के लिए एग्जामिनर एट टाइम्स हार्डर लेवल पे ही विल गिव यू क्वेश्चन जो यू नॉट गेट इट. क्या व्हाट इज ही सेइंग? यही तो सीखना है हमने. क्वेश्चन क्या है? दिस इज वेयर those students who don't do well, they 50% they don't understand the question. उसकी ये समार खाते. एक्सेल में स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एक्सेस में ट्रिकी होता है, वेब ऑथरिंग में स्ट्रेट फॉरवर्ड. सिर्फ एक्सेस एक मॉड्यूल है जहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है क्रिएटिंग अ रिपोर्ट में, वरना मैं नहीं देखता. हाँ, थोड़ा एक्सेल में भी हो जाता है, मगर एक्सेल में फॉर्म भी होता है ज्यादा फॉर्मूला. अगर इसमें एक आ जाए वही लोग आसान है. क्या है सर वो अगर उसके अंदर आ जाए कि इसको इस तरह डिवाइड करो, इसको इस तरह करो, अच्छा 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 करो, अच्छा, वहाँ कंफ्यूजन आती है. वो ज्यादा ठीक है, उसको भी हम और उसका करें. इफ भी डाल दो. इफ अच्छा अच्छा अच्छा, नेस्टेड इफ में फंस यू आर कंफ्यूज्ड. नेस्टेड इफ वी लुकअप और साथ डिवीजन भी उसके अंदर. ठीक है, मैं समझ गया हूँ. अच्छा, इसके बाद आपको पता है कि इफ आई हैव डेट है मेरे पास, द एग्जामिनर सेज कि आई वांट ओवर हियर इज द मंथ, डे, ईयर. किसका करते हैं? रिमेंबर, मंथ या डेट के आगे पता नहीं ब्रैकेट्स लगाते हैं. सही कह रहे हैं. वेरी गुड. फॉर एग्जांपल इफ आई वांट द, बिल्कुल सही. इफ आई वांट द मंथ, मैं राइटिंग month के आगे आप लिखोगे month because month is a function. Since it's a function and I want to find out the month of what, I want to find the month of the date, this date. Now this will come in the square parentheses. क्यों? आपको पता है ना, fields come in the square parentheses and function के लिए we use the bracket. So if I run this now, I get the month. So if I want is the month, I get the month. If I want is the day, I'll write day. If I want the year, I'll write year. So you do know how to do this. और नाउ के लिए ब्लैंक छोड़ देंगे. जी. अच्छा, इसको मैं रन कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास आ रहे हैं सारे वन है, सारे वन है. डे करके देखो, डे थोड़ा डिफरेंट है. कैन आई जस्ट चेंज दिस इनटू, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन यू वन एडवांस पॉइंट जो प्रॉब्ली मुझे नहीं याद मैंने क्लास में कराया. इट्स एन एडवांस पॉइंट. ये क्या नहीं किया. अब डेज आ रहे हैं, ठीक है, 2 3 the question says that you're supposed to create a search criteria for the day. क्या मतलब है? सर्च क्राइटेरिया का मतलब होता है we have to put this, and इसमें हम लिखते हैं let's say enter the day. Now if I run this, it will give me a prompt. Here if I enter 3, it will give me 3. अच्छा, पैरामीटर वैल्यू ऐसे होती है. हाँ. If I run this, if I enter 2, it will give me 2. Only 2. So this is known as a search criteria. Search criteria कहते हैं इसको, या इसको कहते हैं prompt. Create a prompt का word use करेगा एग्जामिनर कभी, ये create a search criteria. You get the point? ठीक है, ये एडवांस पॉइंट है. लेस प्रोबेबिलिटी मगर सेम में रखो. ठीक है, राइट. डोंट फॉरगेट दिस. अच्छा, अगर लेबल्स में पैरामीटर वैल्यू आ जाए तो फिर क्या करें? मैंने कुछ गलत किया था जिसके ऊपर पैरामीटर, लेबल्स में पैरामीटर वैल्यू आपने क्यूरी में गलत कुछ टाइप किया होगा. पैरामीटर वैल्यू वैसे नहीं आना चाहिए. ये तो मैं फोर्सफुली खुद क्रिएट कर रहा हूँ ना. अगर वैसे पैरामीटर वैल्यू आता है इसका मतलब हमको क्राइटेरिया निकालता है. वो भी एक वेरिफिकेशन होगी. ये सेंटर पे हुआ था? नहीं, वैसे हुआ. अच्छा, सो यू नो डे, मंथ, ईयर, ठीक हो गया. और न्यू फील्ड में आपको पता है, अब इफ यू हैव कॉस्ट डिवाइड बाई 2 का पता है रन टाइम में, है ना. 2 फील्ड्स हैं, कॉस्ट एंड प्राइस, माइनस करना पड़ता है, मतलब यू नो रन टाइम पे प्लस, वो पता है आपको सारा. वेरी गुड. ठीक है.
there is one thing जो आपको पता होना चाहिए वैसे at this level कि over here I have is date का function. If I run this, तो I get आज की date. Yes or no? Date जी सर का function. ठीक है. So if I want सर इस डेट के फंक्शन में ये EXPR1 क्यों आ रहा है? वो by default आता है expression one. I can change this into is today's date. ठीक हो अगर हम डिफाइन ना करें तो वो खुद ही ऊपर लिखा रहा है expression में रहता है. ठीक है. अब I want to create a new field over here that will tell me सारी डेट ऑलमोस्ट एक जैसी ही है. एक ही आंसर है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टेल मी हाउ मेनी years have passed. मतलब तो यहाँ उसके अंदर माइनस कर लेंगे. बिल्कुल सही. तो आप ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. आई विल डू दिस इज कि मैं इसमें से माइनस करूंगा डेट को. ठीक हो गया. नाउ इफ आई रन दिस आई गेट इज दिस. मगर ये आ रहे हैं डेज. व्हाट इफ आई वांट ईयर? डिवाइडेड बाय 365 divided by 365. Very good. And what if I want to convert this into whole number? क्योंकि डेसिमल में आ रहा है. इंटीजर. वेरी गुड. ठीक हो गया. एक्सीलेंट हो गया. अच्छा इसमें आई डोंट नो मैंने क्लास में डिस्कस किया कि नहीं किया मगर आपको आना चाहिए. What if I want to create a new field that combines the forename with the surname? हाँ सही आपने किया था वो एंड लगाते हैं. And what if I want to create ऐसा क्वेश्चन आता है कि create a new field ईमेल. ईमेल वाला आता है made right. मुझे थोड़ा भूल गया बट उसका नाम भी ऐसे @ या मगर mid में हमने यूज किया था लेफ्ट. ये जेन में रखनी थी. ये वो पॉइंट से निकालने के चांसेस आते हैं. ठीक है. आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर एज वेल इसलिए देखो याद रख लेना इसको. ऐसे ही मैं करा देता हूँ क्योंकि there have been so many questions coming in and again मगर लास्ट ईयर से चीज़ चेंज हो रही हैं. Examiner can give you these points this time. For example, you want is an email address. I forget what's value. So I can use over here is left. So obviously I use left. और left के अंदर क्या है left? I'm saying the forename. So I will use is पहले for name and comma 2. मतलब ये है कि 2 कैरेक्टर्स ऑफ आ गए हमारे. ठीक हो गया. अब इसको मैं करूंगा आई विल जॉइन दिस विद अगेन लेफ्ट. और पता है एक्चुअली दिस इज हाउ ईमेल एड्रेसेस आर जनरेटेड कंपनीज में ना एम्प्लॉइज के. दैट्स हाउ दे डू इट. सो आई नीड इज द सरनेम. सिर्फ राइट क्यों नहीं लेते लास्ट वाली क्यों नहीं लेते वो भी लेते हैं. वो मर्जी होती है. यू कैन मिड का भी ले सकते जी. सो see I did something wrong. हैं. Can we see what we did wrong? I did something wrong. सरनेम कि स्पेलिंग गलत है. मैंने श्योर नेम लिख दिया है. So you see इसकी प्रॉब्लम आती है. ये आगे मगर this is wrong. You can't have an email address. But because the name is the same. You can, sorry. But let's ignore it. Anyway, and then I need to combine this with, concatenate this with something user defined. And this something user defined will be, let's say, join it with at the rate of yahoo.com. Yeah, could be company collection. So we get this. It has been created. You get the point? सर तो अगर मतलब एग्जामिनर के डिफरेंट होना चाहिए बट उनके सरनेम सेम है तो फिर हम क्या करें और फोन नेम्स भी सेम है और ईमेल एड्रेस डिफरेंट होना चाहिए. In that particular case, what they will do is they will give you one primary key, which will include, let's say, is the employer ID, and they will say is combined the first letter of the forename, the surname, and the employer ID, because employer ID will be different for everyone. You're right.
names could be the same, even the date of birth could be the same. There could be consequences. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो वो तो हम डेट ऑफ बर्थ को भी नहीं हम कह सकते ना. तो we have to have an ID which is defined unique. This question is very good. मगर वो फिर एग्जामिनर को बताएगा कि combined with the primary key that you generated, उसमें फिर हर एक यूनिक ही निकलेगा. यहाँ जैसे यूनिक नहीं निकल रहा. ठीक है, वो एम्प्लॉय एक ही है. अच्छा, let me see if I have not. हाँ, I need to discuss. This is really important. मैं ये सारा बंद करता हूँ क्योंकि मैंने आपको एक और एग्जांपल देनी है. फॉर एग्जांपल इधर आते हैं. The question says कि you see depth D और S आ रहा है. सिर्फ D और D DS है, DS है. चलो मैं कोई और ढूंढता हूँ. मैं चलो किसमें ज़्यादा आ रहे हैं. ये देख लेते हैं. ठीक है, इसमें यू कैन सी इज ओह ये बोट भी हैं डिफरेंट. तीन 3 है ना. डायवेक्ट. ठीक है. एग्जामिनर सेज दैट क्रिएट अ ग्राफ और चार्ट of the type of the boats. Create a graph or chart of the type of the boats and their number. क्वेश्चन समझे? मतलब बोट है ना, बोट टाइप ये बोट्स है ना, उनकी नंबर्स आ जाएंगे. मतलब बताएं कि देखो ना, if I do it in ascending order, ये dive express is appearing how many times, like 8 times. Okay, ये oyster is coming 12 times. ये किस तरह करना है? काउंट I'll tell you a way. याद रखो करना किस पे? M17 site. Remember this. Okay. This is important. मेरे ज़हन में एकदम ऐसा है, ऐसे आ सकते हैं. ये देखो ना, इधर आओ, क्रिएट पे आओ, हम तो क्यूरी डिज़ाइन. ठीक है, ये सारा इसको ऐड करो. क्या देखो, ठीक है. मैंने कहा ना, आई गिव यू माय एक्टिविटीज में चीज़ें हैं. सो आई विल ऐड इस बोट था ना, बोट था. ओके, रन करके देख लिया करो. 5 आ रहा है. ठीक है. नेवर थिंक कि नहीं ऑब्वियसली मुझसे गलती हो सकती है. और आफ्टर एवरी स्टेप देखा करो आ रहा है कि नहीं आ रहा. अब मैं क्या करूंगा, यू सी दिस टोटल ओवर हियर, क्लिक ऑन दिस टोटल. फिर दोबारा आप डालो इसमें बोर्ड एक और बार. ये प्रॉब्लम मैंने क्लास में डिस्कस ना किया हो. देन डू इज डू काउंट टोटल. मैंने बोर्ड 2 बार डाले हैं, मतलब बोर्ड को ग्रुप करे और काउंट करे. इफ आई रन दिस इट विल गिव मी दिस. है यू राइट, बिल्कुल सही थी आप. काउंट ही करेंगे, काउंट ही आ रहा है. या देन व्हाट विल डू इज विल एक्सपोर्ट इट इनटू एक्सेल एंड विल मेक अ ग्राफ. यू गेट द पॉइंट? सो ये बेसिकली हो गया हाउ टू समराइज. क्वेश्चन कैन कम, समराइज हुआ है ना. ठीक है ना. इसके साथ वी कैन इवन डू दिस इज, लेट मी ट्राई. इफ आई ऐड लेट्स से बोट अगेन, मतलब बोट क्या आता नहीं, मुझसे एवरेज निकाल. अगर इसका कोई हो और फील्ड होती ना, कोई नंबर वाली. नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या है? Get the point? मैं थर्ड फील्ड के उसके रिस्पेक्टिव में उसको सम भी कर रहा हूँ या एवरेज भी कर रहा हूँ, या आई कैन इवन डू दैट. अब इसका भी ग्राफ बन सकता है और उसके हिसाब से. ठीक है सर. श्योर, ठीक हो गया. राइट, डोंट फॉरगेट दिस एज वेल. Okay, so obviously you can create a graph or chart जिसमें you will have this as a primary axis and you will have this as secondary axis. करना आता है ना, primary axis and secondary axis आता है ना. ये देखो ना सर, अभी आपने ग्राफ्स कराया नहीं था. क्लास में नहीं कराया. नहीं, ग्राफ्स अभी तक हमने पूरी बनाया. मैं कल करा दूंगा ना. लेट्स डिस्कस इट टुमारो. अब कल आपने आना है जी, मुझे कल रिमाइंड करा देना. मैं स्टार्ट ही करूँगा. ओके, आपने कहा था कि हम ठीक है. नहीं, इट्स इम्पोर्टेंट, रियली इम्पोर्टेंट. वो लेजेंड का क्या था, क्योंकि वो पेपर में आया था, तो इसे वो सभी ने डिस्कस करा. ठीक है, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और इधर आता हूँ मैं इंसर्ट पे. एंड व्हेन यू हैव लेस वैल्यूज ना, प्रेफरेबली अगर एग्जामिनर कहते हैं ना चूज अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट इज मोर सूटेबल, वैसे यूजली वो कहते हैं बाहर करो. अगर नहीं कहता ना, तो आई वुड प्रेफर यूजिंग अ लाइन ग्राफ. आई हैव लेस वैल्यूज. आई टेल यू व्हाई.
क्योंकि लाइन ग्राफ का आपको इजीली पता चल सकता है एवरेज ले सकते हैं जी। और सेकेंडली देखो, इफ आई क्लिक ऑन दिस आई कैन कम टू माय फ्रॉम माय डेटा सीरीज एंड एनेबल द सेकंड एक्सेस। ठीक है, अब तो मुझे एग्जैक्टली पता चल रहा है कौन सी वैल्यू किधर जा रही है, कंपैरिजन कंपैरिजन कर सकते हैं। यू नो हाउ टू चेंज द लेजेंड्स, है ना? या क्लिक करके सेलेक्ट डाटा करके वी कैन चेंज दैट एज वेल। इसको करो और इसको एडिट करो। दिस वाज दिस एंड दैट वाज दैट, व्हाटएवर। सर को कहते हैं नो लेजेंड्स, तो डिलीट कर दो, इफ यू डोंट वांट देम डिलीट कर दो, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा पॉइंट हो गया समरी का भी। सर को नो लेजेंड्स के लिए कुछ बेहतर नहीं, हम बार चार्ट करें। बड़े लेजेंड तो सारों में आएंगे। देखो लेजेंड का मतलब क्या होता है? इफ आई नहीं, कंपैरिजन के लिए मैं वैसे बोल अच्छा, कंपैरिजन की बात कर रहे हो। देखो कंपैरिजन के लिए हाँ बार चार्ट ठीक है, मगर देखो इट डिपेंड्स ऑन। बार चार्ट हम यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू कंपेयर ईयर विद द प्रोडक्शन। लाइन ग्राफ हम तब यूज करते हैं व्हेन समथिंग इज कंटिन्यूसली जा रही है, ठीक है ना? लाइक एयर पोल्यूशन, पॉपुलेशन कंटिन्यूस, ठीक है। अब स्कैटर्ड हम तब यूज करते हैं व्हेन वी वांट व्हेन यू हैव फ्यू वैल्यूज टू कंपेयर विद। स्कैटर्ड में अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूज होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत सारे डॉट्स होंगे, ठीक है। पाई चार्ट हम वी यूज व्हेन वी जस्ट हैव टू कंपेयर वन कॉलम्स डाटा, ओके, नॉट मल्टीपल थिंग्स। पाई चार्ट मतलब पॉपुलेशन अक्रॉस कितनी रही है, ठीक है। सर इसके लिए बेस्ट फिट लाइन का कोई ग्राफ नहीं होता? बेस्ट फिट, हाँ बेस्ट में से बेस्ट इज बार, फ्रैंकली स्पीकिंग। और हम हमारे लेवल में क्वेश्चन ज़्यादातर बार चार्ट का ही आता है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल। तो मैं वैसे ही डिस्कस करूँ कौन सा कब यूज़ करना है आपने, ठीक है। इतना ज़्यादा डिटेल में वो डिस्कस उसे कहेंगे नहीं। अच्छा, समरी में और आपको आना चाहिए, लेट मी सी। यू नो अबाउट ग्रुपिंग, जी सर, है ना? ग्रुपिंग सीख ली है? सर ग्रुपिंग मैंने उधर की थी, जब रिपोर्ट बना के ग्रुप बाय करता है, अच्छा ठीक है, ग्रुप डाटा बाय। ठीक है। अच्छा मैं लेट्स से मैं इसका करता हूँ, रिपोर्ट विजिट से करता हूँ, ठीक है। सर लेट मी, यहाँ से वैसे ग्रुपिंग मैं कुछ क्योंकि मैं कुछ और चीज़ डाल लेता हूँ। इफ आई ऐड ऑल ऑफ दीज और मैं कहता हूँ कि डू वांट इन ग्रुपिंग लेवल, आई वांट टू ग्रुप बाय साइट नेम, यस आई वुड, ओके। एंड ये दिस ग्रुप ऑप्शंस हो गए, ग्रुप बाय फर्स्ट टू इनिशियल्स। आई डोंट नो यहाँ कोई एग्जांपल होगी ऐसे, अगर होएगी पता चल जाएगा हमें। फर्स्ट टू इनिशियल से क्या होगा पता चल जाएगा अभी अगर है कुछ तो। उनके कोड्स आ गए। हाँ मतलब फर्स्ट टू इनिशियल जिनके मैच कर रहे हैं ना, उनको उसने ग्रुप कर दिया। वैसे तो ग्रुप बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वैसे ग्रुप करता है लाइक जो डी से स्टार्ट रहा है उसको अलग कर दो, ई से कर रहे हैं। तो दिस फर्स्ट टू फर्स्ट थ्री का मतलब ये है कि टेल्स यू के जो लाइक ऑल दिस कंट्री दैट स्टार्ट्स विद पी ए या पी ए के, तो तीन को उनको अलग कर देगा, उनको अलग कर देगा। सो यू नो हाउ टू ग्रुप बाय द इनिशियल्स एज वेल, वो इधर आता है ऑप्शन, याद रखना, ओनली इन रिपोर्ट विजार्ड में, ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। राइट, जी बिल्कुल। सिंपल रिपोर्ट में नहीं होगा ना, सिंपल रिपोर्ट में नहीं होता, सिंपल रिपोर्ट में सिंपल ग्रुप बाय करता है, नॉट बाय इनिशियल्स, ये अपने ज़हन में जरूर रखना है आपने। अच्छा, इसमें लेबल्स क्लियर, लेबल्स आर क्लियर। हाँ लेबल्स आर क्लियर बिकॉज लेबल्स इज जस्ट लाइक अ रिपोर्ट। उसके अंदर बस मैंने क्वेरी में गलती की थी, इसलिए वो मेरा आगे क्यूरी इज एवरीथिंग, क्यूरी में गलती है तो रिपोर्ट भी गलता है, लेबल भी गलता है, वो नहीं होना चाहिए। क्यूरी में आई हैव टू आई टेस्ट यू, आई हैव टू टेस्ट यू मल्टीपल क्यूरीज, कॉम्प्लेक्स क्यूरी, गलती क्यों हो, नहीं होनी चाहिए। दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट, हाँ नहीं होनी चाहिए। सर ये भी बहुत प्रॉब्लम होता है, क्यूरी विजिट यूज करना बेटर है या क्यूरी डिजाइन? आई देखो क्यूरी विजिट में मैं सोच रहा था डिस्कस करना करूँ, क्यूरी विजिट इसलिए यूज करते हैं टू समराइज, वैसे क्यूरी विजिट यूज करना टेक्निकली डजंट मेक सेंस, क्यूरी डिजाइन यूज करना चाहिए। क्यूरी विजिट किस लिए है,
फाइंड डुप्लीकेट्स, अनमैच्ड, ऑल्दो ये हमारे सिलेबस से ज़्यादा है, आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस विद यू, मगर वैसे देख लो क्या है, ये फाइंड डुप्लीकेट्स में देते हैं, इसको छोड़ दो। फाइंड डुप्लीकेट्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, नॉट दिस वन, अगर इसको मैं देखता हूँ, एंड इफ आई अरेंज दिस, आई हैव ग्रेट, do I have duplicates? Sorry, I have duplicates. You see, I have many which are not duplicate, they're single. How do I eliminate those single and just have the duplicates? तो सब डुप्लीकेट का फाइंड कर Exactly. So, मैं आपको explain कर देता हूँ. Okay, all you do is, I have this is find duplicates. Okay, Pio. And I'm talking about this, and I'm talking about site name. And you want the other fields? Okay, fine, I want the other fields. And you finish. So you see, I get only the duplicates. I don't get the one that are single. They've been eliminated. तो बेसिकली ये सब कुछ ऑप्शंस पे करता है, डिजाइन जो है वो सारे ही ऑप्शंस Exactly. ये it's not that आप कह सकते हो कि नहीं, should I learn through the wizard, query wizard या design? This is different. This is different. It's not optional. This is different, and creating a report, that is different. Microsoft just did not create a software वैसे ही, हर चीज का कोई different purpose था. Yeah, you do have other options over here. फॉर्म डिजाइन और फॉर्म में भी डिफरेंस क्या है? जी मैं बताता हूँ. जो सिंपल फॉर्म है ना, for example I want to make a form of this. Okay, if I create on this, your form has been created. ठीक हो गया. ठीक है. जो नॉर्मल फॉर्म डिजाइन है ना, वो होता है फ्रॉम द स्क्रैच क्रिएट करना. मैं आपको वो बताता हूँ. If I come here, create, and if I go to let's say blank form, ये फॉर्म डिजाइन कह रहे हो. अच्छा, फॉर्म डिजाइन कह लो. फॉर्म डिजाइन में बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज, शुरू से आपने क्या करना है, आपने एक एक चीज डालनी है. बेसिकली उसका पूरा डिजाइन ही जी, दोबारा से. इसमें आई वुड प्रेफर कि आप वही यूज करो जो मैंने तरीका बताया, मगर ये भी देख लो. आप इधर आओगे, आप ये ओपन करोगे, आप ये कहोगे कि आई वांट द फॉलोइंग फील्ड्स, एंड आई वांट इधर से ये, और इधर से आई वांट इज दिस. सर तो बेसिकली ये तो दो तीन का कंबाइंड हो सकता है. कंबाइंड हो गया. वो तो एक ही फॉर्म होगा ना, एक ही का, एक जी. ही टेबल. दिस विल बी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एट दिस लेवल आपको नहीं देंगे. डोंट वरी, नो, दिस विल बी वेरी वेरी अनफेयर. नहीं, इतना नहीं एग्जाम करना चाहिए. सर ठीक है. यस ध्यान से कर दियो फिर. तो इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा, डोंट वरी, करा दूंगा मैं आपको इसकी प्रैक्टिस. क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ आपको गो थ्रू कराया ना. वी विल डू दिस, मगर ये मैं आपको तब कराऊंगा कि जब मैं देखूंगा कि तैयारी पूरी हो चुकी है, कैन यू डाइजेस्ट मोर, फिर मैं आपको करा दूंगा. क्योंकि इतना डाइजेस्ट करना मुश्किल काम नहीं है, आप कर लोगे. ठीक है. पता है फायदा क्या होता है एक्स्ट्रा करने का? सम टीचर्स डोंट बिलीव इन इट, आई डू बिलीव इन इट. मैं इससे रिलेट करता हूँ कि जब एक्स्ट्रा पढ़ाते हो ना, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव दिस कॉन्फिडेंस विद देम कि हमने इतना कुछ किया, हम तो कर लेंगे, एंड इट वर्क्स. वेल देयर इज एन अदर ग्रुप ऑफ टीचर्स, वो ये कहते हैं कि नहीं गलत है, आप इन द बर्डन डाल रहे हो, एंड मेनी कैंडिडेट्स कांट एडजस्ट. सो मैं एग्री नहीं करता. नहीं बल्कि ऐसा होता है कि अच्छा यार ये ऑप्शन नहीं तो दूसरी ऑप्शन ऑप्शन तो है ही, अवेलेबल है. उससे कर लेंगे. एग्जैक्टली. कॉन्फिडेंस बड़ी चीज़ है. जब में कॉन्फिडेंस होता है ना, आप घबराते नहीं हो. वही हम इतना हम सिलेबस में वी जस्ट हैव 10 फंक्शंस, हमने सर से 20 फंक्शंस पढ़ के आए हैं, तो क्या टफ आ जाएगा? नहीं टफ. तो इसलिए इट वर्क्स, आई बिलीव. हाँ, इतना भी बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए जो सिलेबस को टच भी ना करता हो. वो फिर टाइम वेस्ट है बच्चे के लिए. तो वो मैं नहीं करा रहा आपको, जो टोटली आउट ऑफ सिलेबस है. मैं आपको मैक्रोस कोडिंग वगैरह नहीं करा रहा ना. वो तो बेकार चीज़ है बिल्कुल, इस लेवल के लिए बेकार है. अच्छा, लाइक आई सेड, आई विल कम टू दिस ऑप्शन. इसको हम कहते हैं कस्टमाइज फॉर्म क्रिएशन. जो मैंने कराया ना, कस्टमाइज रिपोर्ट क्रिएशन या कस्टमाइज फॉर्म क्रिएशन, वो हम करेंगे डिस्कस. ठीक है. अच्छा, फॉर्म्स का आपको ये पता है मैंने क्रिएट किया था. आई जस्ट क्रिएटेड सिंपल फॉर्म. यू डू नो दिस इज रिलेटेड. जी, और जी. इसके ना सारे वो बटन्स और कमांड बटन, रेडियो बटन बनाने आते हैं आपको. ड्रॉप डाउन मेन्यू, कॉम्बो बॉक्स जी बनाया जाता है. कॉम्बो बॉक्स में मुझे थोड़ी फॉर एग्जाम्पल, दिस वाज माय क्वालिफिकेशन. मैं क्वालिफिकेशन को डिलीट करता हूँ,
and instead of the text box I want is उसको लिंक करना होता है सर। जी लिंक करना था बिल्कुल ये कॉमा बॉक्स है whatever you do you should have a good reasoning for it और मैं करूँगा I want a combo box to get values from another table yes I want to type them myself ये भी क्वेश्चन आ सकता है you may want to type it yourself next पे जाओगे and you will type in the values yourself by default मगर I don't want to type myself I want to get them from another table and that table is M17 dive ये वाला और इसमें से क्या था qualification next it will ask you ये आ गया कि do you want to store it further yeah obviously I want to store it into qualification as well so here you come when I do this it shows me the qualifications coming as well सर अगर स्टोर ना करें तो हाँ अगर स्टोर ना करें फ्यूचर में जब आप ऐड न्यू करोगे सेव करोगे उसको उसी जगह पे सेव नहीं करेगा देखो दिस वाज क्वालिफिकेशन ना आई वांट दिस क्वालिफिकेशन व्हेन आई क्लिक ऑन दिस इट विल जी लियाकत एक सेकंड इट विल सेव ओवर हियर ठीक है अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तो वो फिर सेव नहीं करेगा इट डायरेक्टली इधर सेव नहीं करेगा ठीक है उसके लिए ऑब्वियसली यू डू नो कि हमें क्या करना पड़ता है you know how to make the command buttons you know how to make the navigation buttons आते हैं ना ठीक है you know how to make the exit button वो भी उधर ही होता है एग्जिट का बटन नेविगेशन होता है इधर ही होता है अगर हम ओ इधर ही होगा quit application in this application में quit if you click on this it will quit the application ठीक है I'll just show you I need to save it first everything वरना बात कर देगा you're running this and you want to quit closes everything क्योंकि आप बेसिकली एक्सेस में जब फॉर्म बनाते हो ना इसमें सेव एंड क्विट की ऑप्शन नहीं जब अगर मैंने सेव ना किया होता ना क्विट करता उसने कुछ पूछना था इट वुड हैव आस्क्ड वो तो मैंने सेव करके किया ना मे बी मैं ना करता हूँ फिर वो इट वुड हैव वर्कड ओके अच्छा मैं दोबारा ये क्या हो गया नहीं वो जाहिर वो यू डोंट हैव टू लर्न नहीं तो हमने दूसरा किया था ना अच्छा इसमें अब नहीं या अभी नहीं डिस्कस करूंगा मैं आपसे मैं एट द एंड डिस्कस करूंगा 1 2 3 समथिंग एडवांस मगर अभी नहीं I don't want to make it confusing for you right now हाँ 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 one thing important हमने lookup डिस्कस किया हुआ है lookup I'll just tell you for example code है ना code and qualification है ना यहाँ पे टेबल में कॉम बॉक्स लगाना लुकअप देखो ना है ना क्वालिफिकेशन पे आओ एंड हियर व्हाट यू हैव इज लुकअप विजार्ड नहीं ये किधर था ये मैंने किसे लुकअप करना है क्यू कोड व्हिच इज इन क्वालिफिकेशन ठीक है ये सुन लो ये मैं कर क्या रहा हूँ व्हेन आई कम हियर आई हेट दिस what I need to do is I need to delete the relationship किसका था ये था ना code and qualification
it's very irritating जो बार बार हाँ आता है आगे से। आई नो। मैं पता करने क्या चाह रहा हूँ तो एक्सप्लेन करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि देखो इधर ना आई वांट अ ड्रॉप डाउन बॉक्स कि मैं क्लिक करूँ तो क्वालिफिकेशन जो है ना दिस माय फॉरेन की ना आई वांट दिस टू रिलेट टू माय प्राइमरी की। ओके सर। ठीक है, ये किस तरह पॉसिबल है? ये देखो व्हाट यू विल डू इज आप इधर आओगे और इधर आके क्वालिफिकेशन है ना कम इनटू लुकअप I want the lookup field to get values from another table or query. Yes, I want that. Next, from where? I want them from which one was it? Site. The साइट site था sure? अरे पता चल जाएगा। नहीं था, ये था मेरे पास यही था, ये था कोड है ना? सिर्फ जी कोड है ना? प्राइमरी की था ना? जी Fine, and let's finish. You will just now it will make the relationship itself. Now see what's happening. If I come here, I have this drop down coming in my table. Not ये form नहीं है, ये table ही है. इसमें वो चीजें आ रही हैं. ये lookup है. सो इट मेक्स इट इजी मतलब कि अगर हमने ऐड करना है तो फिर दोबारा हम जी वैसे कर सकते हैं जी. फॉर्म में अब जाने के ये लिए। देखो इसका अगर मैं काम करता हूँ, मैं अगर करता हूँ ना इसका create and if I create a form of this तो ऑटोमेटिकली इधर आ गया. सो तो अगर हमने ऐड न्यू करना हो तो हाँ हम इसी तरह उसी के डिज़ाइन व्यू में करके तो वो भी तो सही जी है। इंस्टेड हम पहले फॉर्म बनाएं absolutely. और उसके बाद करें। ठीक है. See, all these things are connected. कोई जरूरी नहीं एक तरीके से सीखो. अब ये सीखने का फायदा आपको होगा कि यस ये इस तरीके से भी हो सकता है. Somehow, some way that doesn't work. You know कि I can go at the back end of my table and I can use a lookup wizard to look the foreign key to primary key. अगर मैं उसका मैं टेबल बनाऊंगा तो it will work. हम करें ना बिल्कुल. और अच्छा अच्छी बात बताऊं क्या है? उसने अपना डिजाइन खराब नहीं किया. जी जब when we created तो वो काफी खराब प्रूव कर देता हम्म, है ना? बिल्कुल थोड़ा आगे हम अगर पीछे हो जाता है। ये ऐसी चीजें हैं कि जो हमने उस नॉट एट दैट पर्टिकुलर टाइम नॉट एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस. आपने ये पहले प्रैक्टिस रखनी है. You don't obviously, but then you don't have any password. इसमें ऐसा चीज आएगी. You need to depend on my password, my activities. ये एग्जाम में हम कभी भी we will not experiment. तो सर अभी खुद बैठ के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हाँ बिल्कुल. अभी तो किसी पेपर पे एक्सपेरिमेंट कर I'll सकते हैं। give you recording stop. बहुत बहुत heavy हो जाएगा. I will basically